Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So as we all know, this is our last chapter, that is chapter 10 of our political science book, that is law and social justice. We already studied another chapters of this book and this is a part 3rd of chapter 10, law and social justice. So we already discussed some parts of this chapter, that is the story of Sherd, what is law, what is social justice, why is it necessary for us. Okay, what are the issues that judiciary solves, what is the main problem of a country. As we already studied, there are main problems in between the worker, consumer and the producer. Okay, there are three men, the worker who are working and who are busy in making the things, and second is consumer who consumes, and producer who invests or produce the different things. We saw a table, there we saw some law, why is it necessary and whose interest does the law protect. Okay, we discussed these three things in detail, all the laws and their importance. So now we are starting with our second paragraph, that is through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or the private companies so as to ensure social justice. So already we studied first paragraph in which we discussed there are certain laws for workers, there are certain laws for producers and consumers as well. We studied an example in which we studied that there is a worker who gets the fair wages, but there are some problems. How and what type of problem it is? When the workers are poor or powerless, the fear of losing future earning or facing reprisals often forces them to accept low wages. Okay? When the workers are powerless means they have no power, or they are poor means they are enforced to work or they have to work for their survival. So in that case the owners or we can say the producers take the advantage of it. हम क्या समझते हैं इस पैराग्राफ से कि अगर जो वर्कर है वो पुअर है तो जो प्रोड्यूसर है वो उसका एडवांटेज लेगा, कैसे कि वो वर्कर को या तो पैसे कम देगा, वेजेस कम देगा या फिर कम वेजेस में ज़्यादा काम करवाएगा. तो हर चीज़ के लिए लॉ है. जैसे हमने देखा था कि वर्कर के लिए भी लॉ है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग उनको जो उनकी कम वेजेस हैं वो कम से कम वेजेस जो होती हैं मिनिमम वेजेस वो देनी ही होंगी. ठीक है, इसी के साथ हमने हमारे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ी जिसमें हमने क्या देखा कि एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉ, मतलब इन लॉज तो बन गए, अब उसको अपहोल्ड करवाना यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि वो ढंग से वर्क कर लॉ वर्किंग है या नहीं है. गवर्नमेंट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, क्या करती है गवर्नमेंट इंडिविजुअल की एक्टिविटी को, इंडिविजुअल मानी ह्यूमन बीइंग, अ वर्कर हु इज़ वर्किंग, तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है. प्राइवेट कंपनी सो एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस, ताकि उनके साथ सोशल जस्टिस हो सके. मीन्स कौन वर्क कर रहा है किस कंपनी में, कितनी वेजेस मिल रही है, इस सब का जो अकाउंट होता है वो कंपनी रखती है और कंपनी से ये सारा अकाउंट कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है. मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट उनका भी ध्यान रखती है कि हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन बीइंग को, हर सिटीज़न को उसके राइट्स पता होने चाहिए और वो उसको पूरी तरह मिले. फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन सेज नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज. क्या, जैसे जो हमारा क्या राइट है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आप किसी को भी, एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खराब, या कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं ले सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी बाउंडेज में रह के किसी भी तरीके की बॉन्डेज आप उन पर लगा रहे हैं या कम वेजेस में उनसे काम करवा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इफ़ दे आर नॉट फीलिंग गुड दे कैन लीव और दे कैन से नो for the work. Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. और एक ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, यानी कि 14 साल से छोटा, 14 ईयर्स से
कम एज के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में या फिर माइन में या किसी भी तरीके के हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो काम नहीं करेंगे। हाउ आर दीज लॉ प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, बट इनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनको मानते ही नहीं है। जो है जिसके लिए है वो भी नहीं मानते। अगर किसी के घर की हाउस कंडीशन ख़राब है तो हो सकता है वो बच्चा बाहर काम करने जाना चाहे और जैसा काम मिलेगा वो उसे करना चाहेगा, और जिसे वर्कर चाहिए वो उसे रख लेगा। तो दोनों ही तरफ से लॉ क्या है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के अंदर कंसर्न करना पड़ेगा, उनको जागरूक बनाना पड़ेगा कि ये आपका राइट है और आप इसका यूज़ कीजिए। These are some of the questions, so this chapter will now go on to explore. अब हम इन questions के आंसर यहाँ देखेंगे। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, according to 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 and 14 work in various occupations, including hazardous work. अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो उसमें 4 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो इंडिया के, कौन सी एज के एज है, स्पेशली 5 से 14 के, वो हैजार्डियस वर्क करते हैं, मतलब जो उनके लिए अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, जबकि पार्लियामेंट ये एक्ट पास कर चुकी है कि चाइल्ड लेबर को आप नहीं रख सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन यानी कि चाइल्ड एक्ट की चाइल्ड लेबर नहीं रखी जाए 1986। कब आ गया? 1986 में ही आ गया। बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल द ऑक्यूपेशंस एंड द एडोलेसेंट्स 14 to 18 इन द हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। क्या कहा गया है इस लॉ में, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, कि 14 ईयर्स से छोटा बच्चा कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई 14 से 18 ईयर्स तक का बच्चा काम करता है एडोलेसेंट, तो क्या वो किसी भी हैजार्डियस यानी जो उसके लिए बेनिफिशियल ना हो या नुकसानदायक हो, पोल्यूशन हो या उसके हार्ट को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इतना पॉल्यूटिंग धुआं छोड़ती हैं कि उससे वो जो वर्कर्स होते हैं उनके हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे किसी भी हैजार्डियस प्लेस पे काम नहीं करेगा। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट अ कॉन्जिएबल ऑफेंस, और ये एक पूरा कॉन्जिएबल ऑफेंस यानी कि उस पर पूरे चार्जेस लगाए जाएंगे और गलत माना जाएगा अगर कोई बच्चा काम करेगा। तो एनीवन फाउंड वायलेटिंग the ban must be penalized with the punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years and or fine of rupees 20,000 to 50,000। क्या बोला गया है कि अगर कोई इस एक्ट को तोड़ता है, अगर वो इसको नहीं मानता, तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाएगा। क्या पनिशमेंट होगा कि उसको 6 ईयर्स से लेके 2 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, मतलब 6 महीने से लेके 2 साल तक जेल, या फिर उसको 20,000 से लेके 50,000 तक का मनी पे करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रीयूज एंड रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, हर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम दिया है कि वो इस चीज़ का चेकिंग करते रहें कि उनके यहाँ स्टेट में चिल्ड्रन तो वर्क नहीं कर रहे। एंड ऑनलाइन पोर्टल दैट इज https:pencil.gov.in, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे क्या किया जाता है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल दैट इज हैज़ बिकम फंक्शनल इन 2017। और 2017 में ये पोर्टल बनाया गया था जिस पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी पिक्चर या फिर इस तरीके से फ़ोटो डाल सकते हैं जहाँ पे बच्चा वर्क कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन हुआ। इट इज़ मीट फॉर filing of complaint, child tracking, implementation and monitoring of child labor project। और ये किस लिए किया गया था कि कब या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं या कहीं चाइल्ड लेबर को काम करते देखते उसका वीडियो डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा कि जो ये प्लान है और ज़्यादा वर्क कर पाएगा। जैसे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में भी इस तरह। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे